हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए जो है सीबीएसई के अंतर्गत एनसीईआरटी के बुक के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का है, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में है। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक छोटी बात, और इस हर एक बात के जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। Explain the vision of the ASEAN for 2020. This is the most important. ASEAN's here. The visions of ASEAN for the 2020. You know that that's important. ASEAN was established in the 1967. There is ASEAN was established in the 1967 with the objective to the accelerate economic growth and thought that a social progress and culture development. This is important. There is ASEAN was established in the 1967 with the objective to the accelerate economical growth and thought that social progress and culture development here. ASEAN is a rapidly growing into the very important regional organizations. It has to contain a vision for 2020. There are features of ASEAN Vision 2020 are there are flowing. What is the visions here? ASEAN for the 2020. Let's see. First visions here, it is a vision of 2020 has a defined as the outward looking role for the ASEAN in the international community. This is important visions here. There is an outward looking role of ASEAN in the international communities here. And second here, this built on the exciting ASEAN policy to the encourage is a negotiations over to confessed in the regions. This is important here. There are negotiations here. And third here, thus the ASEAN has meditated for the end of the Cambodians confessed the East Timor's cries and the meets annual to discuss East Asian cooperations here. This is important. There are cries and the meet annual to be discussed here, East Asian cooperations here. And the next year, ASEAN is a strength. ASEAN is a strength lies in its policies of interaction and consultations with their member states. With the dialogue is a partner and with the other non-regional organizations here. And the fifth point here, it is the only regional association in the Asia that provide a political forms where the Asian countries and the major power can discuss political and security concerns. There is most important here. There is a country and the major power is discussed here, a political and security concern here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, चौथा क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2020 के लिए आसियान के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यानी 2020 में आसियान ने 2020 का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें आसियान का जो है क्या दृष्टिकोण था, और ये आसियान होती क्या है, आसियान से किन किन देशों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2020 के लिए आसियान के दृष्टिकोण क्या है। देखिए, साफ शब्दों में जाना जाए तो आसियान की स्थापना जो है
1967 में आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए किया गया था। क्योंकि आपको पता है कोई भी देश जो है अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग पिछड़ रहा होता है तो उसका एक ही मोटिव होती है कि वो आगे विकसित हो। तो यहाँ पर आसियान की स्थापना भी इसी मोटिवेशन के साथ किया गया कि 1967 में आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए, और उसके माध्यम से सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास के उद्देश्य से भी की गई। यानी देखा जाए तो आसियान का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं था कि आर्थिक विकास में तेज़ी लाया जाए, इवन कि देखा जाए तो सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास का भी उद्देश्य आसियान के समक्ष था। और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जर्नल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो वो पूरे देश के ख्याल में रख के बनाई जाती है। इवन कि देखिए नाटो है तो उसका भी एक अपना उद्देश्य होती है। उसी तरह से जो है आसियान का भी अपना एक उद्देश्य था कि इसमें जो है अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाना और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास का जो है उद्देश्य मेन रखा गया। आसियान तेज़ी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें 2020 के लिए निरक्षर दृष्टिकोण है। देखा जाए तो 2020 के लिए इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। आसियान विजन 2020 की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि आसियान ने 2020 तक जो है अपनी कौन सी दृष्टिकोण रखी है, क्या लेके आगे चल रही है। चलिए इन बात पे जो है इनकी विशेषताओं पर ध्यान दें और हर एक बात पे आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता तो यही आता है आसियान का कि इसके विजन 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के लिए एक दूरदर्शी भूमिका के रूप में परिभाषित किया गया। यानी देखा जाए तो आसियान जो था बहुत दूरदर्शी यहाँ भूमिका अदा किया, क्योंकि उसने जो है सभी बातों को जो प्रायोरिटी दी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो ज़रूरी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सभी बातों की तरफ जो है विशेष ध्यान दे और उस पर अमल करे, जिससे कि वो आगे और भी बढ़ सके। और ये क्षेत्र में संघर्षों पर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा आसियान नीति पर आधारित है। यानी क्षेत्र में जब संघर्ष होते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो क्षेत्रीय मुद्दे को जो है सुलझा सके। तो इसके लिए आसियान बहुत साफ शब्दों में इसकी वकालत करती है कि क्षेत्रीय संघर्ष के जो है ये मौजूदा नीतियों पर ये आधारित बनाई गई। और देखा जाए तो इस प्रकार आसियान के जो है कंबोडियन संघर्ष, पूर्वी तिमोर संकट को समाप्त करने में मध्यस्थता की है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक भी करता रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आसियान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अपनी कई जगहों पर अपनी सार्थकता सिद्ध भी की है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है इसके लिए। इवन कि आसियान ने कोवडाया संघर्ष पूर्वी तिमोर में जो है संकट को समाप्त करने में मध्यस्थता का कार्य किया, जो कि उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आसियान की ताकत और सदस्य देशों, संवाद, भागीदारी और अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ बातचीत और परामर्श की नीतियों में निहित रहती है। तो ये आसियान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो सकती है, जो ज़रूरी भी है। उसके पश्चात आता है हमारा पांचवा पॉइंट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है। ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि आसियान जो है एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संघ है, जो कि राजनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां एशियाई और देश और प्रमुख शक्तियां राजनीतिक सुरक्षा चिंता पर चर्चा कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नाटो का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए सभी भारत के देशों ने, एशियाओं ने मिल के जो है एशियान का जो है संगठन किया। और कहते हैं एक होना ही चाहिए सुपर पावर जो कि पूरे एशिया देशों पे कंट्रोल अपना रखे और कहते हैं कि आपसी झगड़ों को जो है निपटान करे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एशियान की जो है संगठन किया गया और ये एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संघ है जो कि राजनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां एशिया देश और प्रमुख शक्तियां राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा बखूबी कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आसियान, ठीक है। विजन जो 2020 बताई गई है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसलिए आपको इसको जो पॉइंटों को जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम जाएंगे, लेकिन आपको पता है जितना हो सके इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो और मदद करने की इच्छा है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो मेरे चैनल पर ज़रूर
जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत कुछ है। 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।